Okay. Assalamu alaikum, sir. My name is Hafsa Munawar, and basically the project topic which was assigned by you is related to Odoo, and I have to work on Odoo employees plus any other module. So I selected project module for this, and I decided to work on project modules because my whole specialization field is related to project management. So before I'm going to start my project, first I want to introduce what is Odoo. Odoo has become the favorite choice for many businesses because it handles a range of business needs. The most important thing. One cannot deny the importance of the features of Odoo as they are helping businesses to grow. Odoo is basically a comprehensive business management software. In other words, we can say that it is a complete suite of open source business apps. Basically, Odoo is turning as a boom or as a huge thing for the businesses as it helps to scale growth, whether you want to manage the accounting of your business or you want to manage the resources of your business, no matter it's related to marketing, project management, accounting, finance, HR, or whatever. Odoo covers a whole departments, a whole organization easily. Or you have other businesses management queries, then you are at the right place. Basically, Odoo is the right place to manage all the tasks, all the queries related to your organization. Okay, so let me start. You can see on my screen, I share my Odoo software. So you can see first I click on discuss. Basically, it is just like our messenger, Facebook Messenger. It is our messenger of Odoo, where we can discuss with employees so many other things related to our projects, related to our meetings, our appraisals, our hiring, firing, related to whatever your faculty is. So here you can discuss with your employees easily. Administrator, a person who sign in, who control overall this software, who is working on the software and deal with all other employees basically, who can give task, assign task, and can change privacy and can change settings overall. So basically, this is my account with which I'm going to log in. Okay, you can see there is written number one. One. It means there is a message for me, conversation. Right? You can see there is a Maria Lutfullah. So I sent her a message related to my project because I'm working for past about 1 week on Odoo projects. So there's so many projects I'm working on uh, to explain it basically. So I also added employees in it. So you can see, for example, I'm just showing you an example that you can see there is a message from Maria Lutfullah. So it is basically all about notifications, all notifications and deals in this discuss section. All right, so now we go to next, employees, the most important thing, the pillar of all organizations, we can say it. Employees are the most important thing and the most important pillar of all organization, the asset of all organization. Basically, without it, organization is it's not possible to work within organization to carry a whole business basically. So अगर हम बात करते हैं employees की, मैंने अपने इस ओडो मॉड्यूल में, अपने इस ओडो सॉफ्टवेयर में सॉरी, ऑल ओवर एम्प्लॉयज बेसिकली जो ऐड किए हैं वो इसको फॉलो करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को. बेसिकली आई एम वर्किंग ऑन Zaman Physics Poya Consulting Engineering Corporation. So basically there is an option of projects which is really important for me because I'm working on project module. So it is really important option for me to work on projects and focus on this option. So basically I select this organization to work on it, Zaman Physics Poya Consulting Engineering.
बिकॉज ये जो एक माइनिंग कंसल्टिंग कंपनी है, ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिस पे ये वर्किंग कर रही होगी। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को इसलिए सामने रखा है ताकि इसके अकॉर्डिंग मैं अपने एम्प्लॉयर्स को एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैंने किस तरीके से अपने एम्प्लॉयर्स जो है वो बनाए हैं, किस तरीके से ऐड किए हैं, क्रिएट किए हैं अपने सॉफ्टवेयर में। सो यू कैन सी द फर्स्ट थिंग इज शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स वो होते हैं विच इन्वेस्ट which purchase shares of your company basically to earn in return a dividend or some kind of bonus जिसे हम कह सकते हैं। तो वो शेयर होल्डर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम दोबारा से अपने सॉफ्टवेयर पे जाते हैं। हमारी कंपनी में, इस कंपनी में 4 मेंबर्स हैं। दे आर 4 बोर्ड मेंबर्स। नंबर 1 इज अली अकबर। You can see each and everything, a whole data is filled, properly filled। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको खाली, कोई ऑप्शन खाली नहीं दिखेगा एक्सेप्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन, क्योंकि प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली मेरे पास इनकी नहीं होगी। तो हर चीज़ फिल्ड है। तो अली अकबर कौन है? ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी जामिन फिजिक्स पोया एंड ऑल्सो अ बोर्ड मेंबर। ठीक है, इसके अलावा कौन है यहाँ पर हमारे पास बोर्ड मेंबर है हमारे साथ? असगर आज़ादी। He is also a board member and working with a company। फिर हम दोबारा से जाते हैं और इसके अलावा हमारे बोर्ड मेंबर कौन है? मोहम्मद रेजा निकुदेल। ये भी एक बोर्ड मेंबर है, हमारा पर्सन है। ठीक है, इसके अलावा जो 4th है वो है नासिर हफीजी। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ बोर्ड। ऑलराइट, सो अब हम और वाइस चेयरमैन भी हैं कंपनी के। तो अगर हम दोबारा से अब बात करते हैं, अब मैं आपको शो करती हूँ यहाँ पर मेंबर ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यही 4 हैं कि कोई और है? एग्जैक्टली दीज आर 4 बोर्ड मेंबर्स जो कि हमारे उर्दू के सॉफ्टवेयर में भी हैं सेम। ये हमारी हायरार्की को कवर करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, बोर्ड मेंबर की बात कौन आते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमारे जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं सैयद जियाउल यकीन, अब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जामिन फिजिक्स पोया। यू कैन सी जॉब टाइटल मैनेजिंग डायरेक्टर। और राइट, ये कंपनी बेसिकली ईरान में है, तो यहाँ पर टाइम जोन भी हमने ईरान का सेट किया है। कंपनी में वर्किंग आवर्स क्या है? 40 आवर्स हैं पर वीक। कंसल्टिंग कंपनी है, ओवरऑल 40 आवर्स पर वीक यहाँ पर काम होता है। इसके अलावा ये इनकी ईमेल है, इनका मोबाइल फ़ोन नंबर, लोकेशन, एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रिटन ऑलरेडी मेंशन्ड इन एम्प्लॉयज़ फॉर्म्स। सो इसके अलावा अब हम बात करते हैं किसकी? मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं हमारे। चीफ एग्जीक्यूटिव इज़ बेसिकली अ पर्सन, इसको हम ये कह सकते हैं ही इज़ अ फैकल्टी हेड। We are not talking about departments, we are talking about facilities, the other facilities of company which related to finance, HR, project management and sales, marketing and related to एडवर्टाइजमेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे इस कंपनी में, लेकिन फर्दर और इंजीनियरिंग डिपार्ट, ये सारे जो भी हैं, प्रोक्योरमेंट, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इन सब के जो हेड हैं वो कौन है? वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको रखा है? ऑफ कोर्स मिस्टर इफ्तिखार समीर। फॉर एग्जांपल ये कौन है? ये इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। किस डिपार्ट के, किस फैकल्टी के? फैकल्टी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ही इज़ अ हेड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव। इनके बाद अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट्स के मैनेजर के। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी? देयर आर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन कंपनी। ये 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हैं मैंने कंपनी में, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी हैं हायरार्की को देखते हुए। ओके, सो नंबर 1 डिपार्ट कौन सा है? इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, जियो फिजिकल डिपार्टमेंट, जियो टेक्निकल डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस कंपनी को कवर करते हैं ओवरऑल। ठीक है, इसके बाद अब हम दोबारा से एम्प्लॉयज़ में चले जाते हैं।
अब मैं ये बात करती हूँ इस हायरार्की में हमारी ये दो चीज़ें कवर हो चुकी हैं कि एक ये मैनेजिंग माइनिंग सर्विसेज, माइनिंग डिपार्टमेंट और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारे जो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं इनके मैनेजर्स कौन कौन हैं। इन 4 डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर हैं उनमें नंबर 1 एक यही है असगर आज़ादी, जो कि बोर्ड भी है और ही इज़ ऑल्सो अ मैनेजर ऑफ जियो फिजिकल डिपार्टमेंट ऑलरेडी मैंशनड इन हिज profile that he is a manager of geophysical department. Another person is manager of geotechnical department, Mohammad Reza. He is also a board member. And engineering and geological environmental department के जो manager है वो कौन है? नासिर हफीजी. He is also a vice chairman and a person of board. Okay, so the fourth department के जो हमारे chairman है वो manager है वो कहाँ है? ये है नादिर ताहिबुर. He is a manager of mining department. तो ये हमारे फोर्थ मेंबर हैं. तो ओवरऑल हमारे 4 डिपार्टमेंट के मैनेजर्स भी हो गए कवर. सही, जो पर्पल लाइन है ये भी कवर हो गई. अब हम बात करते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स जो है किन डिपार्टमेंट्स का लिंक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से है और किन डिपार्टमेंट्स का लिंक जो है वो लेबोरेटरी वर्क से है, इंजीनियरिंग अदर फैकल्टी से. सो देयर आर 2 different departments who work with project managers and work with Mr. Iftikhar Sami, senior project manager. So basically जो 2 डिपार्टमेंट हैं वो यहाँ पर है mining services and a geological services. You can check in company hierarchy which I already sent you in ERP proposal. So there are 2 different departments and who are working under a project manager. और उनके अंदर भी तकरीबन एक डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट फैकल्टी यानी कि माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर माइनिंग से रिलेटेड ही जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं और जो जियोलॉजिकल सर्विसेज डिपार्टमेंट है उसके अंदर जियोलॉजिकल ही उनके बैकग्राउंड से वो एक जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं. देन उनके बाद कौन आते हैं? उनके बाद आते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स एंड असिस्टेंट्स जो कि इनकी हेल्प करते हैं. असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के असिस्टेंट हो गए. लेकिन हमारे पास सीनियर मैनेजर जो है वो एक ही मैंने रखे हैं यहाँ पर. उसके बाद हमारे जो जूनियर मैनेजर्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है यहाँ पर और टेक्निकल असिस्टेंट भी मैंने ऐसे ही ज़्यादा रखे हैं. अब वो कौन है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ. देखिए सबसे पहले ये है कि हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं. 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किन से डील करता है. तो सबसे पहले जो हमारा डिपार्ट है वो इंजीनियरिंग एंड जियोलॉजिकल एनवायरमेंटल डिपार्ट है. इनके एम्प्लॉयज़ हम देखते हैं. तो जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उधर एक हफ्सा मुनव्वर, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हिरा काज़मी, समद अहमद. ये 3 कौन है? ये 3 पर्सन जो है यहाँ पर जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट में. और यहाँ के जो मैनेजर हैं वो कौन है? नासिर हफीजी विच आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड. इसके अलावा जो यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स रखे हैं वो मैंने यहाँ पर एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो कि एज असिस्टेंट वर्क करते हैं इन जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ. ज़िशान जमील एंड आयशा सुल्तान. ये सारे नाम जो भी मैंने लिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे अननोन है, आई डोंट नो, बस ऐसे मैंने एक डेटा बनाया है सबका यहाँ पर. ठीक है, अब हम दूसरे डिपार्ट की बात करते हैं. दूसरा डिपार्ट कौन सा था? हमारा माइनिंग का डिपार्ट जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्किंग होती है. तो वहाँ की जो जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है वो कौन है? मारिया लुत्फुल्ला. एक है हमारे पास जैनेट, एक है हमारे पास असद शाहिद. These 3 persons are junior project managers. अब अगर हम टेक्निकल एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर सारा खान एंड जुहेब अहमद. These 2 persons are technical experts and assistants. अब यहाँ पर मैनेजर कौन है? वो है नादिर तागिपुर. ही इज़ अ मैनेजर ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट. तो अब ये हो गई हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कंप्लीट. पूरे हमने बोर्ड मेंबर्स लेकर टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक अपने सारे एम्प्लॉयज़ पहले क्रिएट कर लिए. ये मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना था कि मैंने खुद पर्सनली किस तरीके से किए, क्या वर्किंग की है. अच्छा, अब हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयज़ कैसे क्रिएट होते हैं ओडो पे. इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग. यहाँ पर पहले बात आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके की इनका फॉर्मेट चेंज करने के भी ऑप्शंस हैं. अगर आपने इसको इस तरह की फॉर्मेट में देखना है
रॉज के कॉलम्स के फॉर्म में, तो आप इसे रॉज और कॉलम के फॉर्म में भी दे सकते हैं। इसके अंदर इनकी फर्दर डिटेल्स भी हैं पूरी ओवरऑल, इनके कॉन्टैक्ट्स, इनके नेम, इनकी कंपनी, डिपार्टमेंट्स, जॉब पोजीशन, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी इन डिटेल। अगर हम लोग कॉलम्स की फॉर्म में देना चाहते हैं ऐसे ही बॉक्सेस की फॉर्म में, देन हम दोबारा से इसके बॉक्सेस की फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि हम लोग ने यहाँ पर एम्प्लॉयज़ कैसे क्रिएट किए। मैं आपको एक एम्प्लॉय सिंपल क्रिएट करके बताती हूँ। यू कैन सी देयर इज़ ऑप्शन ऑफ क्रिएट एम्प्लॉयज़, क्रिएट करेंगे, क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय का नेम रखेंगे, कोई भी नाम, हम नाम रख लेते हैं एम्प्लॉय का कोई भी, जैसे हमने रख लिया इसमें हिफ्सा इफ्तिखार फॉर एग्जाम्पल। ही इज़ अ फुल टाइम। लोकेशन हमने इनके कहाँ से ली, यहाँ से ले ली, वेबसाइट से। जॉब लोकेशन हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दी। ईमेल, ईमेल भी हम यहाँ से ले लेते हैं। मोबाइल नंबर हम कुछ भी डाल देंगे इनका, क्योंकि हमें मोबाइल नंबर नहीं पता। फ़ोन नंबर 021 वट जो भी नंबर से हैं। डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में काम करती हूँ, फॉर एग्जांपल माइनिंग डिपार्टमेंट से। जॉब पोजीशन क्या है इनकी, ये है हमारे पास। देखिए सारे इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर चुकी हूँ सारे ऑप्शंस, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी इस स्पेशलिटी के लोग इस कंपनी में वर्किंग करते हैं। जॉब पोजीशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली, ये कौन है, ही इज़ अ जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट। मैनेजर कौन आ रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पर खुद ब खुद मैंशन है मैनेजर नादिर तागिपुर, ही इज़ अ मैनेजर ऑफ माइनिंग डिपार्टमेंट। अगर आपने चेक करना है इनका फर्दर प्रोफाइल, देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन arrow button and you can check his complete profile. He is a manager of mining department. सेव कर देते हैं। कोच ऑफ कोर्स सर इफ्तिखार, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। टाइम हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ईरान का, क्योंकि इट्स अ कंपनी विच इज़ लोकेटेड इन ईरान। ठीक है, तो ये हमारे पास ओवरऑल होगी। प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। HR सेटिंग में जाके ये रिलेटेड यूज़र अभी हमारा कोई है नहीं, क्योंकि अभी हमने इनको, इस एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अभी क्रिएट किया है। इस एम्प्लॉय को अभी हमने किसी प्रोजेक्ट में या उसमें यूज़ नहीं किया। तो जब हम इसकी प्रोफाइल को यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास दोबारा से लिंक मांगेगा, दोबारा से हर चीज़ को हमें पुट करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को। वो मैं आपको करके बताऊँगी। ये हो गई हमारे पास सेव। अब ये जो नीचे आप लोग देख सकते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आ रही है। नोट बाय एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिव ट्रू, नोट बाय एम्प्लॉय क्रिएटेड। ये सारी हमारे पास नोटिफिकेशन जो है वो नीचे यहाँ पर हर एम्प्लॉय के प्रोफाइल के नीचे आएंगी, अगर हम इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं तो। फॉलोवर, यहाँ पर एक फॉलोवर है इनका, वो ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर ही है जो कि यूज़ करें मी। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका प्रोफाइल हो गया। पिक्चर ऐड करनी है तो हम सिंपली फ़ोटो पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, अगेन यहाँ से हम लोग पिक्चर ऐड कर देंगे। जो भी हमारे पास कोई भी पिक्चर जैसे अवेलेबल हो तो वो हम ऐड कर देंगे, जो कभी है नहीं अवेलेबल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हैं। एम्प्लॉयज़ पे जाते हैं हम दोबारा से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय होंगी एक हिफ्सा इफ्तिखार, शी इज़ हेयर। हिफ्सा इफ्तिखार जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर फुल टाइम, और ये इनका जॉब लोकेशन लिखी हुई आ रही है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएट डिपार्टमेंट करते हैं। हर डिपार्टमेंट में जो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में खुद दिखेंगे। असगर आज़ादी, ही इज़ अ मैनेजर ऑफ फिजिकल, जो फिजिकल डिपार्टमेंट। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट के मैनेजर कौन है, ये है। हर डिपार्टमेंट का मेंबर जो है वो उसी डिपार्टमेंट में शो होगा। अ कंप्लीट टीम, उनकी पूरी टीम एक साथ शो होगी, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की और उसकी कि जिस पे मैंने वर्किंग की है प्रोजेक्ट्स की, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी सबसे पहले मैं आपको ये इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो क्या है बेसिकली।
सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है because it ensures what is being delivered in right or wrong way and will deliver real value against the business opportunities. Of course, as a project progresses, it is possible that risks may emerge that turn into issues or even the business strategy may change. But a project manager will ensure that the project is part of the realignment. Project management really matters here because projects that veer off course or which fail to adapt to the business needs may end up being expensive and or unnecessary. So basically प्रोजेक्ट्स जो है वो एक ऐसा हमारे पास यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, एक इस तरह का मॉड्यूल है ओडो में जो कि हमें अप एंड डाउन्स प्लानिंग स्ट्रेटजी को मेंटेन करने में मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है और ये प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल टूल है, एक बेनिफिशियल मॉड्यूल है जो कि ओडो ने प्रोवाइड किया है, एक तरीके से ओडो ने कवर किया इस चीज़ को। तो अब हम अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट्स की तो ये हमारे पास ये मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। इस पे फॉलोइंग कुछ मॉड्यूल्स हैं जिन पर मैंने वर्किंग की है बिकॉज ये कंपनी जो है वो माइनिंग से रिलेटेड है, कंसल्टेशन से रिलेटेड है। तो ये फॉलोइंग मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है। यू कैन सी कॉपर माइनिंग, डायमंड जियोलॉजिकल माइनिंग, आयरन माइन एक्सप्लोरेशन, स्लोप अनस्टेबिलिटी, स्कैन ऑफ सोर गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम स्टडीज़। तो ये ओवरऑल 6 मैंने इसमें प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है। क्यों? आपको ये याद होगा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 3 जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स माइनिंग के डिपार्टमेंट से, 3 जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। तो इसमें से 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो माइनिंग वाले प्रोजेक्ट मैनेजर डील कर रहे हैं और 3 कर रहे हैं जियोलॉजिकल। तो ये ओवरऑल जो है वो 6 प्रोजेक्ट्स इसलिए यहाँ पर बने। अब अगर हमने इनको, ये हमारे पास फिल्टर्स आ जाते हैं। अगर आप इनको आर्काइव करना चाहे आर्काइव कर सकते हैं, फॉलोड बाय मी, यानी कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको मैं चाहूँ तो ये मैं इसको फॉलो भी कर सकती हूँ। फेवरेट्स अपने फेवरेट्स में ऐड कर सकती हूँ। जो मेरे फेवरेट्स हैं वो शो हो रहे हैं। देखें मैंने इन लोगों से अपने फेवरेट्स में ऐड किया हुआ है। फेवरेट्स क्या, ये जो इसके स्टार्स येलो हुए हैं, इसको मैं यहाँ हटा दूँगी। अब मेरे पास ये शो नहीं होगा, ओनली 2 प्रोजेक्ट्स आर शोइंग। अगर मैं बाय ग्रुप देखने, प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजर और कस्टम की बात करेंगे अगर हम तो इस तरीके से शो हो जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करेंगे, कस्टम से हटा देंगे। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के थ्रू, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? इफ्तिखार सिंह, इनका नाम आ गया सबसे टॉप पर। प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ हमारे पास शो हो रहे हैं। इसको हटा देते हैं, वापस ऐसे शो होंगे। मैनेजर के नेम के साथ चेक करना है, उनका नेम फ्रंट टॉप पे आ जाएगा। हु इज़ अ मैनेजर ऑफ दिस ऑल प्रोजेक्ट्स और सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो यहाँ पर मैनेजर का नाम आ गया। इस तरीके से अगर हम इसको हटा देते हैं हमारे पास सिंपल ऐसे शो होने लग जाएंगे। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मैंने किस तरीके से बनाए। बेसिकली प्रोजेक्ट मॉड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज: प्रोजेक्ट्स, ऑल टास्क्स, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है वो ये है कि वो ओडो इंटरप्राइज में, ओडो इंटरप्राइज में ये है कि हमें उसको परचेज करना पड़ता है, तो उसके बाद ही हम इसकी चेंजेस कर पाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो प्रोजेक्ट्स के अंदर ये डिफरेंट हमारे पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हमने बनाए हुए हैं अभी तक। अब जैसे हमें फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? हम क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट्स। अब कोई भी प्रोजेक्ट जैसे हमने क्रिएट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कंसल्टेशन इससे रिलेटेड है ये कंपनी। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया कोल माइनिंग, कोयले की हम लोग कान में जाकर माइनिंग करनी फॉर एग्जांपल। तो ये हमने ले लिया कोल माइनिंग, इस नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट हो गया क्रिएट। अब हमने इसमें टास्क बनाने, यानी कि हमने इस प्रोजेक्ट में अपने जो डिफरेंट टास्क रखने हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए स्टेजेस रखनी है। फॉर एग्जांपल टास्क का मतलब यही है कि स्टेजेस, हमने प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से स्टेजेस रखना चाह रहे हैं जो कि पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, डेज वाइज, मंथ वाइज, इस तरीके से।
तो ये हमने फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट में हमने स्टेजेस रखी। सबसे नंबर 1 इसकी एग्जांपल में हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर कंसल्टिंग के ऊपर जाके, न्यू प्रोजेक्ट्स, रिसोर्स एलोकेशन, इन प्रोग्रेस, डन। तो ये सिर्फ इसकी स्टेजेस हैं इस प्रोजेक्ट की। इन स्टेजेस से होकर ये कंप्लीट होगा आगे। तो क्योंकि हमारा कंसल्टिंग प्रोजेक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम इनकी ये स्टेजेस रखेंगे। स्टेज नंबर 1 क्या है हमारे पास, न्यू प्रोजेक्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पर लिखेंगे अपने पास न्यू प्रोजेक्ट्स और हम इसे ऐड कर देंगे। ये हमारे पास टास्क क्लियर हो गया। सेकंड टास्क हमारे पास क्या था, रिसोर्सेस एलोकेशन, कि हमारे पास रिसोर्सेस का प्रॉपर यूज़ हो रहा है, रिसोर्सेस हमारे पास पूरी हैं, कंप्लीट हैं, या क्या उसके में और मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं। थर्ड कॉलम क्या था हमारा, इन प्रोसेस, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस आवर प्रोजेक्ट आर स्टिल इन प्रोसेस, एंड द लास्ट ऑप्शन इज डन, प्रोजेक्ट कंप्लीट। तो ये हमारे पास टास्क आ जाएंगे इसके। अब ये जो हमने प्रोजेक्ट्स के टास्क जो हैं वो क्रिएट किए हैं, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमने प्रोजेक्ट्स की सब हेडिंग्स जो हैं वो क्रिएट किए, इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टास्क जो है वो क्रिएट करेंगे। टास्क कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास टास्क। अब हमारे इस प्रोजेक्ट में टास्क क्या है वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला टास्क जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, वो मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये टास्क जो है ये कौन कर रहा है परफॉर्म, किसको असाइन करना चाहते हैं हम ये टास्क, हम ये टास्क असाइन करेंगे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को, अपने सर को, सर इफ्तिखार समी को। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया। एडिट करना है, इसको एडिट करें, क्योंकि इसमें हमने फर्दर क्या करना है, अब इसको एडिट करके क्या होगा, इसमें फर्दर हम इसकी डेडलाइन ऐड कर सकते हैं। डेडलाइन क्या देते हैं हम इसको हम डेडलाइन दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज 16 है, हमने इसको दे दी नेक्स्ट मंथ की 4। टैक्स हम इसमें कोई भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यानी कि कोई भी अगर क्लॉथिंग ब्रांड है तो उसका टैग क्या है, फॉर एग्जाम्पल सना सफीनाज है तो उसका टैग हो गया। या अगर हमारे पास टैग और भी हो गए डिफरेंट कंपनीज़ के, कोई फर्नीचर ले लें आप, डेस्क, या अगर हम लोग कोई भी इससे जो भी डिफरेंट चीज़ ले लें आप, कोई भी ब्रांड ले लें, उसका कोई ना कोई टैग होता है। इस से हमारे पास चॉकलेट फॉर एग्जाम्पल हमने ले ली डेयरी मिल्क, उसका टैग हो गया डेयरी मिल्क हो गया फॉर एग्जाम्पल, या कैडबरी हो गया उसका टैग, या अगर किट कैट है तो उसका टैग हो गया फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, या अगर हम इस सही से डिफरेंट कंपनीज के टैग होते हैं। तो इस सही से अगर हम इसको भी टैग देते हैं इस टास्क को, तो इसका टैग हम देते हैं फॉर एग्जांपल कॉल पे यहाँ अपने क्रिएट कॉल क्रिएट कर दिया हमने इसको। इसका कलर चेंज करते हैं इस टैग का, हमने फॉर एग्जांपल इसको कलर दे दिया ये। और माइनिंग ऑब्वियसली देखें टास्क क्रिएट हुआ हुआ है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन का, हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस टास्क के बारे में, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या ड्यूटीज़ हो सकती हैं। कोल माइनिंग ये क्या, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, तो बेसिकली इसकी डिफरेंट यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शंस ऐड कर देंगे जो भी इस टास्क से रिलेटेड होंगी, जैसे मॉनिटरिंग एम्प्लॉयज़, असाइन दैम वर्क। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हो जाता है हमारे पास प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग आ गया। फर्दर जो भी आपके टास्क हो सकते हैं आप उसको ऐसे बुलेट फॉर्म में यहाँ पर ऐड करेंगे और सिंपली ये हमारे टास्क रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, ये टास्क पूरा कंप्लीट हो गया हमारे पास। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे। सही है, ये हो गया हमारे पास सेव टास्क। अब हम दोबारा से टास्क पे जाते हैं, तो ये हमारे पास कंपनी के नीचे क्या आ गया, हमारे पास एक टास्क आ गया। अगर हमने एक और बनाना है कि अब हम, ये तो हमारे सीनियर मैनेजर हैं, इनका काम है मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग, अब ये अगर इनके जूनियर लेवल पे इनके नीचे कौन काम करेगा इसके अंदर, तो हम एक और टास्क क्रिएट करेंगे और फर्दर जो भी है वो उसका क्या काम होगा, वो क्या करेगा, असाइन वर्क टू एम्प्लॉयज़।
जो जो उसको टास्क दिए जाएंगे वो सारे असाइन करेगा अपने नीचे टेक्निकल असिस्टेंट्स को और फर्दर जो भी इसके वर्कर्स होंगे जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। अब हम इसमें ऐड करते हैं, अभी हमने एक एम्प्लॉय बनाया था, कौन सा, हिफ्सा इफ्तिखार। यहाँ पर हमारे पास शो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी ये ऐड ही नहीं है। इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर अपने पास, हिफ्सा इफ्तिखार। ये हो गया हमारे पास क्रिएट एम्प्लॉय। इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट टैब खोलेंगे अपने साथ इधर बराबर में और दोबारा से एम्प्लॉयज़ पर जाएंगे। एम्प्लॉयज़ पे जाके हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय जनरेट की थी, क्रिएट की थी, हिफ्सा इफ्तिखार। इसको करते हैं, इसका डेटा जो है, इसकी वेबसाइट, ईमेल वर्क, ईमेल क्या डाली थी हमने, ये तो कॉपी किया हमने इसको सेम। क्रिएट हिफ्सा इफ्तिखार, ये ईमेल हमने यहाँ कर दी इनकी पेस्ट। ये कौन है, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। फ़ोन नंबर हमने यहाँ पर कुछ पुट कर दिया 02136 और ये मोबाइल नंबर 0321 व्हाटएवर। ठीक है, ये हमने यहाँ पर टाइप कर दिया, सेव कर दिया हमने प्रोफाइल। ये हो गया इनका प्रोफाइल सेव। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेडलाइन, डेडलाइन हमने क्या रखी थी इसकी 4 नेक्स्ट मंथ की। टैक्स क्या आते हैं हमारे इसमें, कोल COA ऑलरेडी क्रिएटेड है ये जो है, और टैग माइनिंग ये भी क्रिएटेड है ऑलरेडी। तो ये हमारे 2 टैग्स हो गए। डिस्क्रिप्शन क्या है, असाइन वर्क टू एम्प्लॉयज़, इसमें क्या है, असाइन ड्यूटीज़। इसके अलावा फर्दर हमारे पास कोई भी और ऑप्शन हो, जो भी पॉइंट्स हो गए इससे रिलेटेड, चेक रिपोर्ट्स एंड सेंड टू सीनियर मैनेजर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये क्या करेंगे, इसकी ये ड्यूटीज जो भी डिस्क्रिप्शन है इस टास्क से रिलेटेड, वो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे, लिखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन जो भी। तो ये हो गया हमारे पास एक और टास्क कंप्लीट। सेव कर लेते हैं हम इसे। अब हम दोबारा से जाते हैं अपने टास्क पे। तो यू कैन सी देयर आर 2 डिफरेंट टास्क। ये हम अपने नए एम्प्लॉय आई हैं, अब हमने क्या करना है, इसको लिंक करना है। कैसे, इस प्रोफाइल से लिंक करना है, इसको हम एडिट करेंगे। मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि हम प्रोफाइल्स को लिंक करते हैं, कैसे करते हैं। अब रिलेटेड यूज़र कौन है हमारे यहाँ पर, ये कौन है, हिफ्सा इफ्तिखार। तो ये आ गई हमारे पास हिफ्सा इफ्तिखार, ये हो गई हिफ्सा। अब ये सेव कर देंगे, ये दोनों प्रोफाइल क्या हो गया, लिंक हो गए एक दूसरे से। सही, अब ये दोनों प्रोफाइल हमारे पास लिंक हो गए। अब हम इसको क्या करते हैं आपसे यहाँ पर, अब अगर अब इसके अलावा इसके अंदर और जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अब अगर हमने इसको रॉस की कॉलम में देखना है तो हम रॉस की कॉलम में भी देख सकते हैं। स्टेजेस कौन सी हैं अभी इन दोनों की, इन दोनों टास्क की स्टेजेस कौन सी हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स। किन किन को असाइन किया गया है, हिफ्सा इफ्तिखार को, मिस्टर इफ्तिखार समी को। प्रोजेक्ट कौन सा है, कोल माइनिंग। टाइटल क्या है, टाइटल भी लिखे हुए हैं। अब अगर हमने इनको कैलेंडर की फॉर्म में देखना है तो इसकी लास्ट डेट कौन सी है, 4। असाइन वर्क टू, इन दोनों टास्क कंप्लीट होने की लास्ट डेट कौन सी है, 4। किन किन को उनको असाइन है, इन दोनों एम्प्लॉयज़ को असाइन है। ये ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको क्लियरली शो हो रही है। इसके अलावा ये हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में एक तरीके से लिखा हुआ है, न्यू प्रोजेक्ट्स हमारे पास कितने हैं, इसमें कितने, 2 है टोटल, 2 टास्क हैं हमारे पास ओवरऑल। कोल माइनिंग टोटल कितने टास्क हैं, 2। इन 2 टास्क के अंदर विद इन 2 टास्क दिस प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, ऑलमोस्ट डन। इनका कहने का मतलब ये, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ 2 टास्क ऐड किए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ये देखिए, कोल माइनिंग न्यू प्रोजेक्ट,
नो एक्टिविटीज़, क्योंकि हमने कोई एक्टिविटीज़ में अभी जनरेट नहीं की। ठीक है, अब अगर हमारे पास अगर हम अब इनके ऑप्शंस की हम बात करते हैं, इसको अगर हम स्टार को येलो करते हैं तो इसका मतलब ये दिस टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी गिव दिस वन मोर प्रायोरिटी एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि अब इसको नीचे कर देते हैं। अब ये करते हैं हम कि इस पर चेक करते हैं कि ये ऑप्शन क्या है। इस ऑप्शन से ये होता है कि हम इसमें एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी स्केड्यूल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस न्यू प्रोजेक्ट के स्टेज के बाद हमें क्या करना है, हमें एक मीटिंग जनरेट करनी है। हमें एक मीटिंग करनी पड़ी एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने सीनियर मैनेजर के साथ कोई मीटिंग करनी होगी अब हमें, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली स्केड्यूल करेंगे अ मीटिंग। अभी जो एक्टिविटी है इसके अंदर हम लोग कौन सी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं, हमें क्या करना है, हमें ईमेल करनी है, कॉल करनी है, मीटिंग करनी है, या कोई एक्सेप्शन या कोई टू डू वट एवर हमारा टॉपिक जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल हमने मीटिंग करनी है, हम डिस्कस क्या करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे वर्किंग के बारे में। फॉर एग्जाम्पल इसके अलावा मीटिंग हमने किस दिन रखनी है, अगर हम ये मीटिंग रखते हैं आज ही के दिन, और किसको असाइन की जा रही है ये मीटिंग, किसके साथ करनी चाह रहे हैं आप ये मीटिंग, ये करने जा रहे हैं हम हिफ्सा इफ्तिखार के साथ। मैं सिंपली इस पर क्लिक कर दिया, इसकी तो भी होगी ओवरऑल, जिसमें यहाँ पे लिख सकते हैं आप हैं हेलो हिफ्सा, शेयर योर वर्किंग रिपोर्ट and meet me with proper documentation and proper filing. एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा मीटिंग टॉपिक हो गया। ठीक है, अब हमने इसको स्केड्यूल कर दिया, इस मीटिंग को हम स्केड्यूल करेंगे अगर आज ही की डेट पे, तो ये हमारे पास येलो कलर में शो होगा टुडे। अगर अगर हम इस मीटिंग को कल स्केड्यूल करते हैं तो देखते हैं कैसे शो होता है, ग्रीन। अब अगर हम ये प्लान है, अब अगर हम इस मीटिंग को फॉर एग्जांपल ये मीटिंग हमारी निकल चुकी 13 रेड, इसका मतलब ये ओवरड्यू हो गई, यानी कि ये मीटिंग हमारी एक दिन बाद पहले थी, 2 दिन पहले थी, और हमने इस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको अब हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको दोबारा से 2 दिन बाद कर देते हैं, तो ये हमारे पास ग्रीन कलर में शो हो गया, एक दिन बाद कर देते हैं। लोडिंग, सही, ये देखें दोबारा से ग्रीन शो होने लग गया। ठीक है, तो अभी ये इसका ऑप्शन ये है, ये 2 ऑप्शंस क्लियर हो चुके हैं। यू कैन सी यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी लास्ट डेट 4 अप्रैल और 2020, यहाँ पर लास्ट डेट लिखी हुई आ रही है इस टास्क की, दोनों टास्क में ऐसे लिखी हुई आ रही है। अब इस तरीके से अगर हम जिस टास्क को प्रायोरिटी देना चाहते हैं उसको हम येलो कर सकते हैं स्टार को। फर्दर इसके लिए क्या है, सेट कवर पेज, शेयर, एडिट टास्क, डिलीट टास्क। इसके अलावा इसमें कलर्स हैं, हम कौन सा कलर देना चाहते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ये दे दिया, कोल माइनिंग है, कोल माइनिंग में हमने इसको ये कलर दे दिया, या टास्क को जो भी कलर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। साइड लाइन इसकी उसी कलर की हो जाएगी, इसको अगर हम रेड देना चाहते हैं रेड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके अलावा ये है कि अगर हमने इसमें फर्दर कोई इमेज ऐड करनी है, सेट करना है हमने कवर, तो कवर अगर ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली ठीक है कैंसिल हो जाती है स्क्रीन। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल भी हम कवर तो ऐड कर सकते हैं लेकिन डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको कवर ऐड करके दिखा देती हूँ इसमें।
कोल माइनिंग, इमेजेस, कोई भी इमेज ले ली हमने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ले ली कोई भी अच्छी सी इमेज, ये ले ली फॉर एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कोल माइनिंग की इमेज। इंटरनेट, अच्छा इसको कर लिया हमने, सेव पिक्चर कर ली, डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। सिंपली हम लोगों ने इसको इस तरीके से, हमारे पास ये डेस्कटॉप पे सेव हो गई है इमेज। अब हम जाएंगे सिंपल, यहाँ पर हमने यहाँ पर करना है कवर सेट करना है, सेट कवर इमेज, अपलोड कवर इमेज। कहाँ, डेस्कटॉप पे सेव किया था हमने, ये हमारे पास माइनिंग की इमेज आ गई, ये देखें ये कवर सेट हो गया हमारे पास। इस तरीके से हम अपने हर टास्क के ऊपर एक कवर सेट कर सकते हैं, उसको एक लेबल देने के लिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये सही की फॉर्म है। अब इसको हमने इसी ऑप्शन ऐसे हैं कि जब हमने इसको सही की फॉर्म में देखना है, ये मैं ऑलरेडी शायद एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं रॉस की कॉलम में, कॉलम्स की फॉर्म में, लेकिन हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये ओवरऑल इसी का प्रोसेस है। अब अगर हमने ये देखना है कि हमारा ये टास्क जो है कंप्लीट हो गया है, न्यू प्रोजेक्ट्स के इस स्टेज से ये टास्क कंप्लीट हो गया है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे रंग का सर्कल है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा, यानी कि रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज। इस स्टेज का के जो हाफ टास्क है वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसको हम ड्रैग करके नेक्स्ट स्टेज में कर देंगे, दोबारा ये ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन से ग्रे हो जाएगा। अब हम जैसे ये वाला प्रोजेक्ट ये भी कंप्लीट हो गया, इसको हम ड्रैग करके इधर कर देंगे, ठीक, ड्रैग कर देंगे। अब हमारा दोबारा से ये टास्क कंप्लीट हो गया, इसको फिर हम रेडी ड्रैग कर देंगे। तो इस तरीके से सब प्रोसेस चलते हैं। जैसे जैसे हमारी ये डेट वाइज ये काम कंप्लीट होता जाता है, तो हम इसको सिंपली क्लिक करते हैं रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, इसको सिंपली ड्रैग कर देते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, इसको भी सिंपली ड्रैग कर देंगे हम नेक्स्ट स्टेज पे, इस तरीके से। सॉरी पर इस पर करेंगे हमारे पास यहाँ पर रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, देन इसको हम ड्रैग कर देंगे इधर। तो ये हमारा प्रोसेस है पूरा कंप्लीट। प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से वर्किंग होती है। अब अगर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सेकंड, इस तरह हमारे पास एक और देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब अगर हम इसको एडिट करते हैं, इसको अगर हम एडिट करते हैं तो हमारे पास टास्क की जगह पर हमें यहाँ पर टास्क मेंशन करते हैं। टास्क कौन से थे हमारे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। सेकंड टास्क था वो क्या था, वो हमारे पास था असाइन वर्क टू एम्प्लॉइज, इससे ही से था कुछ, ठीक है। ये हमारे पास दोनों टास्क हो गए। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर कौन है के, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर इफ्तिखार सर। ये आप इसके अंदर प्राइवेसी आप ऐड कर सकते हैं कि अब आप ये बताएं कि आप ये जो मैनेजर हैं, इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ये आप अपने कस्टमर्स को शो करना चाहते हैं, क्योंकि कस्टमर भी ऐड होते हैं इसके अंदर, कस्टमर के ऊपर प्रोफाइल बनता है, लेकिन कस्टमर का प्रोफाइल इधर डायरेक्टली इसके अंदर नहीं बनेगा, प्रोजेक्ट्स में नहीं बनेगा। कस्टमर जो है उनके लिए अलग जो है वो CRM एक डाउनलोड होगा, उसके अंदर कस्टमर्स वगैरह आपके सारे आते हैं, वो एक अलग मॉड्यूल होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी प्राइवेसी लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि उसको एम्प्लॉयज़ को शो करें, तो आप सिर्फ विजिबल बाय एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं। ऑन इन्विटेशन, यानी कि इन्विटेशन जो देगा कि भाई हमें बताएं कि हमारे इस प्रोजेक्ट का जो है वो मैनेजर कौन है, तो फिर हम उनको ऑन इन्विटेशन शो कर सकते हैं कि ये इनके मैनेजर हैं। तो हम सिंपली इसको करते हैं विजिबल बाय ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है। ये इसके अलावा यहाँ पर ये सभी है इस तरीके से। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पिक्चर है यहाँ पर, जब भी हमने पिक्चर एक ऐड की थी, ये देखें ये डॉक्यूमेंट, अभी फिलहाल सिर्फ एक पिक्चर ऐड हुई है, तो वही डॉक्यूमेंट है हमारे। इसके अलावा यहाँ पर टास्क कौन कौन से हैं, ये 2 टास्क हैं। और क्या इस प्रोजेक्ट में एक्टिव है, ऑफ कोर्स ये प्रोजेक्ट अभी एक्टिव है, अभी चल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास सेव। दोबारा से हम प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं,
तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास टास्क इसके शो होने लग गए। इस प्रोजेक्ट में 2 टास्क हैं, इसमें कितने 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। ऐसे इनके नंबर ऑफ क्वांटिटी विद इसका इनका जो कंप्लीट नेम है उसके साथ ये शो होंगे। इसको हम कलर दे देते हैं। इसको हमने कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कलर दे दिया, ठीक है, कोल माइनिंग है। इसी तरीके से मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए हैं, बनाए हुए हैं विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ। ये इसी तरीके से देखें, यहाँ पर जो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके टास्क जो हैं वो चल रहे हैं। ये कौन सा ये कॉपर माइनिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें देखें ये मिस्टर इफ्तिखार समी जो है वो उनका एक प्रोजेक्ट है एनालाइजिंग प्रोजेक्ट रिस्क, और इन्हीं के अंडर में जो काम कर रहा है जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर वो कौन है हमारे पास, समद अहमद, जो कि जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं। और ये 2 इनके देखे मैंने टास्क में जाके चेक करते हैं। ये इनके टैग्स है, माइनिंग, कॉपर, डेट, डेडलाइन की 23 है, डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर लिखी हुई। इसके अलावा जो है वो ये देखें मीटिंग भी अरेंज हुई हुई है, एक्टिविटी परफॉर्मेंस, डियर मैम चेक योर रिपोर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट। ये एक्टिविटी भी अरेंज, प्लान एक्टिविटीज़ टुडे, स्टेज चेंज हो गई, यानी कि एक जो है वो स्टेज जो है एलोकेट रिसोर्सेज से इन प्रोग्रेस में चली गई, एक स्टेज कंप्लीट हो गई। और तो ये फर्दर जो भी नोटिफिकेशन आएंगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो हमारे पास नीचे आएंगी इसके लिखी हुई। प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, मिस्टर इफ्तिखार समी, प्रोजेक्ट कॉपर माइनिंग, कानबान स्टेज लेबल, कौन सी स्टेज चल रही है उनकी, इन प्रोग्रेस। न्यू स्टेज कौन सी है, न्यू प्रोजेक्ट्स। जो स्टेज एक और है वो कौन सी है, न्यू प्रोजेक्ट्स की। टाइटल क्या है, एक्टिविटी फुलफिलमेंट प्लानिंग, यानी कि जो टास्क है। तो ईच एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली इन डिटेल्ड रिटन इन अंडर दिस इंफॉर्मेशन। यहाँ पर प्लान एक्टिविटीज हर नोटिफिकेशन डिटेल में आपको शो होगी। अब अगर हम चाहें तो हमने टास्क यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हमारी एक्टिविटी कौन सी है, एक्टिविटी फुलफिलमेंट प्लानिंग, जो किसको असाइन की हुई है, समद अहमद को। अब मैं ये कहाँ है अभी, इन प्रोग्रेस में, यू कैन सी यहाँ पर ये डार्क ग्रे कलर में इन प्रोग्रेस में। इसको अगर हम डन पे कर देते हैं तो ये क्या है हमारे पास, कहाँ आ गई है, डन पे आ गई। अब अगर हम इसको जाते हैं दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट्स पे चली जाए, इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, न्यू प्रोजेक्ट्स, अब फिर से टास्क पे जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट्स, यू कैन सी ये वहाँ से इधर ड्रैग हो गई खुद बहुत। तो हम इस पर क्लिक करके भी इसको ऐसे कर सकते हैं चेंज, इन सब टूल से क्लिक करके सिंपली, और ऐसे ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हैं। येलो लाइट का क्या मतलब था, यहाँ पर कोई मीटिंग अरेंज हुई है। मीटिंग किससे अरेंज हुई है, हफ्सा मुनव्वर से। क्या मीटिंग है, डियर मैम चेक रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट। ये मीटिंग कब की है, आज की है। एक्टिविटी परफॉर्मेंस समरी स्केड्यूल हुई है। इसके अलावा एक और मीटिंग है जो कि टेक्निकल असिस्टेंट, कौन है ये टेक्निकल असिस्टेंट, ये है आयशा सुल्तान। मैं ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि यहाँ पर 2 टेक्निकल असिस्टेंट किस कंपनी के साथ जॉब, किस डिपार्ट के साथ हैं, जियो फिजिकल के साथ हैं, और 2 माइनिंग के साथ हैं। तो ये आयशा सुल्तान को जो कि जियो फिजिकल डिपार्टमेंट के साथ वर्क कर रही है, ये टेक्निकल असिस्टेंट है यहाँ पर, और ये इनकी डिटेल्स हैं जो इनकी वर्किंग डिटेल है। इसके इस टास्क की टेक्निकल असिस्टेंट से एक टास्क है, इसकी डिटेल्स ये हैं जिस पे ये वर्किंग कर रही है। रिपोर्ट सबमिशन, देखें टुमारो, ये कोई मीटिंग है जो कि अरेंज हुई है जिसके बारे में हम बात करते हैं। वो मीटिंग कौन सी है, ये इस मीटिंग के टास्क है। सर प्लीज अरेंज मीटिंग, आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस मैटर्स, माइनिंग टेक्नीशियन व्हाटएवर। ये क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट है तो ये टेक्नीशियन से रिलेटेड ही कुछ डिस्कशन करना चाह रही है। तो ये मीटिंग अरेंज की हुई है मैंने किनके साथ, असाइन असद शाहिद इज़ अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, वो सॉरी प्रोजेक्ट मैनेजर। स्केड्यूल, ये मीटिंग कब है, ये कल है, प्लान है। अब ये रेड शो रहा है, क्यों, ये ओवरड्यू हो गई। ये जो है एनालाइजिंग प्रोजेक्ट रिस्क, किसको टास्क दिया हुआ है, असाइन किया हुआ है, मिस्टर इफ्तिखार समी को। टैक्स कौन से, माइनिंग कॉपर, डिस्क्रिप्शन ये है इनके टास्क की। इनकी मीटिंग किसके साथ थी, मारिया लुत्फुल्लाह के साथ थी। दोबारा से टास्क पे जाते हैं, मीटिंग क्या थी जो कि ओवरड्यू हो गई, क्लिक किया हमने, रिस्क रिपोर्ट रीचेकिंग, ये था इनका टॉपिक। मारिया रीचेक रिपोर्ट एंड सबमिट मी टिल टुमारो, थैंक यू। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन हो गई। ड्यू डेट क्या थी, 15। मारिया लुत्फुल्लाह को असाइन किया गया था ये टास्क, लेकिन क्या मारिया लुत्फुल्लाह बिजी थी और या शायद वो किसी और काम में बिजी होंगी तो वो
ओवरड्यू हो गया, रेड हो गया। सही है। तो इस तरीके से ये सारी मीटिंग्स अरेंज होती हैं, साथ में टास्क भी होते हैं अरेंज, और साथ में ये लेबल्स भी अरेंज होते हैं। अब अगर ये टास्क फॉर एग्जांपल कंप्लीट ग्रीन है, इसका मतलब क्या है, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम डन पे ले जाएंगे। वापस क्या हो जाएगा, ये वापसी हो जाएगा, ये ग्रीन ग्रीन हो जाएगा वापसी। नंबर यहाँ पर कितने लिखे हैं, 1। ये शो कर रहा है कि इस स्टेज में सिर्फ एक टास्क है। 2 ये शो कर रहा है यहाँ पर 2 टास्क है। अब अगर हमने इसको प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में देखना है, तो ये प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में सही से देखना, कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट विद नेम एंड दीज आर टास्क, दिस 3 टास्क आर रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट कॉपर माइनिंग। तो सिंपली हम लोग इसको वापस ऐसे ही कर देते हैं। स्टेजेस तो ये है, शो हो रही है कंपनी के नाम के साथ शो होने लग गया। इस तरीके से ये सिंपली एक ईजीएस्ट तरीका है इसको देखने का, हर प्रोजेक्ट पे वर्किंग करने का। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट हमने अभी आपके सामने मैंने इसको जो है सर क्रिएट किया है प्रोजेक्ट को। इस तरीके से कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है, ईच एंड एवरीथिंग वैसी है, लेकिन ग्रीन है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि ग्रीन होता है तो मीटिंग प्लान होती है, ठीक है। तो ये हमारा अभी हमने क्रिएट किया है कोल माइनिंग का। अब अगर हम इसको प्रोजेक्ट्स मैनेजर के साथ देखना चाहते हैं, तो ये इफ्तिखार समी का नाम आ गया, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टोटल कितने प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, 7, नंबर ऑफ क्वांटिटी 7 प्रोजेक्ट्स। अब हम जाते हैं ऑल टास्क पे। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इस प्रोजेक्ट मॉड्यूल के अंदर, आफ्टर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट देयर इज अ ऑप्शन ऑफ ऑल टास्क। ऑल टास्क का ऑप्शन जो है वो क्या है, वो ये है कि अगर हमने सिर्फ और सिर्फ टास्क देखने, हमने देखना है कि हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये कितने प्रोजेक्ट्स होते होंगे कंपनी के, ये 50+, 40+ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते होंगे। तो अब वो चाहते हैं कि वो सारे कंपनी के टास्क एक साथ देखें, हमारे ओवरऑल कितने टास्क हैं जो हम लोग कर कंप्लीट अभी होने बाकी हैं, कौन से प्रोसेस में है, किस में मीटिंग्स अभी अरेंज हुई हैं, किस में मीटिंग्स नहीं हुई हैं अरेंज। तो एक एक चीज़ अगर एक साथ देखनी है कंपनी में अपने सारे प्रोजेक्ट्स के, तो उसका सिंपली ये मेथड है, हमने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया इसमें। ये आ गए हमारे पास सारे प्रोजेक्ट्स और किस स्टेजेस के साथ, कौन कौन से स्टेजेस में कौन कौन सा टास्क है, कौन कौन सा टास्क रहता है अभी, कौन कौन सा टास्क नहीं रहता, किस किस में मीटिंग अरेंज हुई है, किस किस में मीटिंग नहीं अरेंज हुई, कौन कौन सा टास्क किस किस को असाइन है, ईच एंड एवरीथिंग। कौन से प्रोजेक्ट से यहाँ पर लिखा हुआ है, डायमंड जियोलॉजिकल माइनिंग इस प्रोजेक्ट से है, जो कि मिस्टर इफ्तिखार समी के पास है। ये स्टेज डिटेल स्टेज प्लान्स, ये इस स्टेज में ये 2 हैं टास्क। न्यू प्रोजेक्ट, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, पेट्रोलियम स्टडीज़, इसका एक टास्क जो है वो न्यू प्रोजेक्ट्स के उसमें स्टेज में है अभी, कोई भी मीटिंग अरेंज नहीं हुई अभी। सेकंड, रिसोर्स एलोकेशन, ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज। ये कौन सा टास्क है, कौन से प्रोजेक्ट का है, स्लोप एंड स्टेबिलिटी स्टडी ऑफ गोल्ड माइंस। इसके बाद हमारे जो फर्दर टास्क हैं वो ये हैं, एलोकेट रिसोर्सेस। ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं, 2 टास्क इसके अंदर है, कॉपर माइनिंग। तो हर प्रोजेक्ट का कौन कौन सा प्रोजेक्ट कौन से टास्क तक पहुंच चुका है, कितने टास्क बाकी हैं अभी तक, किस में कितनी लेट वर्किंग हो रही है, किस में जल्दी वर्किंग हो रही है, ये सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और टास्क में जाकर विद प्रॉपर टैग्स। ठीक है, ये कौन सा प्रोजेक्ट है, ये है गैस पाइपलाइन से रिलेटेड, स्कैन ऑफ सोर गैस पाइपलाइंस, जिसकी लास्ट डेट क्या है 25/2020, लास्ट डेट इज ऑल्सो मैंशनड। पेट्रोलियम स्टडीज़ से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, जो कि इसका टास्क का नाम क्या है, अप्लाइंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स माइनिंग पेट्रोलियम विद प्रॉपर कवर पेज ऑल्सो सेट। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एक ये है गोल्ड माइनिंग का प्रोजेक्ट, जो कि इसकी ये डेट निकल चुकी है, ओवरड्यू हो गई है।
तो एक एक चीज़, मीटिंग्स, हर चीज़ को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो फोल्ड हुए हैं इसका क्या मतलब है, ये कैसे फोल्ड हुए हैं? ऐसे फोल्ड हुए हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाके हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे तो फोल्ड हो जाएगा सिंपली। ये दोबारा से इसको खोल दिया हमने, ओपन कर दिया। अगर हम दोबारा से जाते हैं, एडिट करते हैं इस स्टेज को, तो क्या होता है, फोल्डेड इन कानबान। फोल्डेड इन कानबान पर क्लिक करेंगे हम। अगर हम स्टेज को जाके इसके नेम भी चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक की जगह पे रीडू कर सकते हैं, डू इट अगेन, इसको चेंज कर सकते हैं ना स्टेज का नाम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको फोल्डेड इन कानबान करते हैं, सेव करते हैं, तो कैनबन का मतलब ये इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें पेज को। कौन सी स्टेज को किया था हमने, इस स्टेज को किया था, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कोल माइनिंग इंटर, फोल्ड हो चुकी होगी। चलिए रिफ्रेश किया हमने इसको, फोल्डेड, रिफ्रेश करने से फोल्ड हो जाएगी। दोबारा से इसको हम ड्रैग करेंगे फिर खुल जाएगी, क्लिक करेंगे खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो ये इसकी सिंपली ये है कि अगर हमने कोई भी स्टेज बीच में से फोल्ड करनी है तो हम उसको फोल्ड कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब ऊपर फ्रंट पे लेकर आ सकते हैं। इसको डिलीट कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, अनआर्काइव कर सकते हैं। तो ये बेसिक इनके ऑप्शंस हैं। इसको अगर हमने इसी स्टेजेस को, इन्हीं सारी स्टेजेस को हमने जो सिविल प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं यहाँ पर बनी हुई, इन्हीं सारी स्टेजेस को अगर हमने रॉस में देखना है तो वी कैन ऑल्सो check several information in ROS related to this projects and task। यहाँ पर सारे टास्क आ रहे हैं लिखे हुए, ये सारे हमारे टास्क हैं जो कि हमने क्रिएट किए हैं, ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वर्किंग हो रही है, और ये टास्क हैं जो कि इन प्रोजेक्ट से लिंक करते हैं, किन किन को असाइन किए गए हैं, इनके नेम्स लिखे हुए हैं, आयशा सुल्तान, वट एवर, हिफ्सा इफ्तिखार, हफ्सा मुनव्वर, मारिया लुत्फुल्लाह, और कौन कौन से स्टेज पे हैं, कौन कौन से डन कंप्लीट हैं, रिसोर्स एलोकेशन प्रोग्रेस, और जो जो उनकी स्टेजेस होंगी वो कंप्लीट शो होंगे। अब अगर हम इसके अंदर यहाँ पर बाय ग्रुप प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट के साथ शो होने लग गए। कोल माइनिंग, कॉपर माइनिंग, ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शो हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर हमने इसको असाइन टू करते हैं, प्रोजेक्ट्स को हटाते हैं, तो किन किन को असाइन किए हुए टास्क, इन को असाइन किए हुए स्टेजेस, दीज आर दी स्टेजेस जिसमें ये टास्क अभी भी हैं, ये वो स्टेजेस हैं। और ज़्यादातर से हम ये देख सकते हैं कि कौन सी स्टेजेस सबसे ज़्यादा जो है वो हमारी आगे है, यानी कि कौन सी स्टेजेस है, कौन सी स्टेजेस अंदर डन है। 2 प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट हैं, 2 टास्क हमारे कंप्लीट हैं। डन में देखें, दे आर 2, 1 एंड 1। डन में हमारे 2 हैं। ज़्यादातर हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, हमारे टास्क वो हैं रिसोर्स एलोकेशन की स्टेज में, हमारे ज़्यादातर टास्क रिसोर्स एलोकेशन की स्टेज में। तो इससे हम ये सब चेक कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक फॉर्मेट है जिसके थ्रू जो है वो यहाँ पर एक एक चीज़ डिटेल्ड और प्रॉपर तरीके से शो हो रही है, सही। तो ये है हमारा ऑल टास्क, इसका ऑप्शन। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में जाएंगे, हमारे पास एक ऑप्शन आएगा टास्क एनालिसिस। हमने इसको एनालिसिस करना है, हमने इसको ग्राफ्स की फॉर्म में देखना है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एक प्रोजेक्ट अलग अलग जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर के नेम के साथ शो हो रहा है कि हर प्रोजेक्ट का अलग अलग मैनेजर है। प्रोजेक्ट नंबर 1 हिफ्सा इफ्तिखार कोल माइनिंग, सेकंड आयशा सुल्तान कॉपर माइनिंग, जूनियर मैनेजर ये है प्रोजेक्ट मैनेजर। जैनेट डायमंड जियोलॉजिकल माइनिंग, हफ्सा मुनव्वर आयरन माइन एक्सप्लोरेशन, असद शाहिद पेट्रोलियम स्टडीज, स्कैन ऑफ सोर गैस पाइपलाइन हीरा काज़मी, स्लोप ऑफ अनस्टेबिलिटी स्टडी ऑफ गोल्ड माइन मारिया लुत्फुल्लाह। तो ये सारे हमारे पास एक हर प्रोजेक्ट का अलग अलग हमारे पास इसकी स्टेजेस दिख रही हैं। जो प्रोजेक्ट सबसे आगे चल रहा है वो है कॉपर सोर्स माइनिंग, जो कि तकरीबन डन कंप्लीट हो चुका है। वो है हमारे पास कॉपर माइनिंग समद अहमद के पास। कैसे, क्या वाकई वो कंप्लीट हो चुका है?
हमारे पास इधर सही से हमें यहाँ पर तो इस ग्राफ के थ्रू यही पता चल रहा है कि वाकई वो कंप्लीट हो चुका है। हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ जाएंगे, कॉपर माइनिंग पे जाएंगे, ऑलमोस्ट डन, एनालाइजिंग प्रोजेक्ट रिस्क। इसका एक टास्क यहाँ तक आ गया है। अब अगर हम इन सारे टास्क को कंप्लीट करते हैं फिर चेक करते हैं ये ग्राफ हमें किस तरीके से बताता है। रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज। माउस का मसला, सॉरी, कॉपर माइनिंग, रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज। सही। अब हम देखते हैं कि अब हमारे पास रिपोर्टिंग जाके टास्क मैनेजर में, अब देखते हैं, ये देखें, ये शो कर रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फर्दर और ये अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी प्रोसेस में है। अब अगर हमने इसको पाई चार्ट की फॉर्म में देखना है तो हम इसे पाई चार्ट की फॉर्म में भी देख सकते हैं। 7%, 9%, क्योंकि ज़्यादातर सभी में ही कितने टास्क हैं, 2 टास्क हैं। इक्वली यही हर प्रोजेक्ट में वर्किंग हो रही है। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग कलर है जो कि इसके साथ इसको शो कर रहा है। इसमें हम टाइमिंग सेट कर सकते हैं, डेडलाइन सेट कर सकते हैं। इसमें डेडलाइन क्या है, डेडलाइन हम सेट करते हैं, टाइम रेंज डेडलाइन 7 डेज, अप्लाई। सिर्फ इसमें टाइम रेंज भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस पर वर्किंग होती है, सिंपल। ये हमारे पास फॉर्म में आ गया, लाइंस की फॉर्म में आ गया, रॉस की फॉर्म में। ये हीरा काज़मी है और उनके साथ सीनियर मैनेजर कौन है, इफ्तिखार समी। इसमें ये होगा, इसमें जो सीनियर मैनेजर हैं उनकी भी परफॉर्मेंस शो होगी। स्टैक की फॉर्म में, ये ग्रुप की फॉर्म में वर्किंग अगर चेक करना चाहें तो ग्रुप की फॉर्म में, ये ग्रुप्स बने हुए हैं हर प्रोजेक्ट में, एक सीनियर है एक जूनियर है प्रोजेक्ट मैनेजर। स्टैक की फॉर्म में सही से, तो सही से इस पर वर्किंग होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सही से प्रोजेक्ट्स पर वर्किंग होती है। फर्दर ये कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी टाइमिंग्स क्या हैं, टाइमिंग्स के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसमें मैंने वर्किंग करने की कोशिश की टाइमिंग्स में भी, कि जो है वो इसमें ये होता है कि हर प्रोजेक्ट, हर इसको एक टास्क को जो है एक टाइम जो है वो दिया जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे कोल माइनिंग पे की थी वर्किंग, ठीक है। हर टास्क को जो है एक डेडलाइन दी जाती है यहाँ पर। इसके अलावा इस टास्क को कंप्लीट होने के साथ साथ इसमें यहाँ पर एक वर्क टाइम टू असाइन, ये भी एक ऑप्शन होता है। ये ऑप्शन अभी मेरे पास इनेबल्ड है, इस पर मैं वर्किंग नहीं कर सकती। एडिट भी करती हूँ अगर तो भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइम शीट मॉड्यूल नहीं है। उसके लिए मुझे टाइम शीट मॉड्यूल पर वर्किंग करनी पड़ेगी। मैंने उसको इंस्टॉल करने की भी कोशिश की अपने पास, ऐप्स पे जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास टाइम शीट्स का मॉड्यूल आ गया। इसको अपग्रेड करने की कोशिश की क्योंकि मेरे पास अपग्रेड नहीं है। तो जब मैंने इसको अपग्रेड करने की कोशिश की, मैंने कौन सा मॉड्यूल अपग्रेड करना था, टाइम शीट, जो कि किससे लिंक करता है, प्रोजेक्ट से लिंक करता है। तो ये इसके चार्ज कर रहे थे, तो इसलिए मैं इसकी टाइम शीट्स पे वर्किंग नहीं कर सकी। उससे ये होता कि मैं इनके टास्क जो हैं उनमें टाइमिंग ऐड कर देती, और हर टास्क की कोई ना कोई टाइमिंग ऐड कर देती कि ये टास्क जो है वो, जैसे इसकी लास्ट डेट 25 है फॉर एग्जाम्पल, और आज हमारे पास 16 है, तो मैं इसको 2 दिन दे देती, हर टास्क को 3 दिन दे देती, ऐसे कर देती। तो इस तरीके से मैंने इस पर वर्किंग की है। हर टास्क को इसलिए चेंज नहीं कर सकी क्योंकि इस पर टाइमिंग इसलिए ऐड नहीं कर सकी, इसमें सिर्फ डेडलाइन ऐड कर सकी मैं। हाँ, इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन ऐड कर सकी बस मैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डेडलाइन का ऑप्शन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जाके जब मैंने इसको एडिट करके, सॉरी, तो कस्टमर की डिस्क्रिप्शन आ गई,
तो इसको मैं जब टाइमिंग की तरफ मैं जब जाने लगी तो उसके बाद उसमें मैं टाइमिंग इससे ऐड नहीं कर सकी, वरना यहाँ पर टाइम शीट का एक ऑप्शन आता है, टाइम शीट्स। वो तब आता है जब आपके पास टाइम शीट इंस्टॉल होती है, फिर उसके अंदर आप सारा अपना प्रोजेक्ट जो है उनका डेटा उसमें ऐड करते हैं, टाइम शीट्स में ऐड करते हैं, मॉड्यूल्स में ऐड करते हैं। उसके बारे में मैंने सर्च भी किया, तो फिर उसके अंदर जब ये सारा डेटा ऐड हो जाता है तो फिर हम उसमें टाइमिंग्स अरेंज करते हैं। जब उसमें टाइमिंग्स हम अरेंज कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर खुद ब खुद ही क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास शो होने शुरू हो जाएंगे, टाइम शीट्स का ऑप्शन शो होगा हमारे पास यहाँ पर। तो ओवरऑल ये एक तरीका है जिससे ये होता है कि हम टास्क जो है उनको भी टाइमिंग्स दे सकते हैं। फर्दर ये है कि प्रोजेक्ट जो है उसके अलावा इसमें प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात होती है कि हमारे प्रोजेक्ट उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी शीट्स बनती हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट्स का पूरा ओवरऑल डेटा बनता है कि इसमें कितनी कॉस्ट लगती है, कितना इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना हमें इसमें लॉस हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें करने के लिए मैंने इसमें बहुत सर्च किया, तो मुझे ये पता चला कि इसमें हमें एक और मॉड्यूल पर वर्किंग करनी पड़ेगी जो कि सेल्स से रिलेटेड है। तो हमें सेल्स मॉड्यूल पर वर्किंग करनी पड़ेगी। लिहाजा मैं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें सिर्फ मुझे एक मॉड्यूल पर वर्क करना है, तो इसलिए मैंने फिर सेल्स पे वर्किंग नहीं की, सेल्स पे वर्किंग स्टार्ट की। उसके अलावा इसमें टाइम शीट्स पर वर्किंग नहीं की। टाइम शीट पर वर्किंग करना चाह रही थी लेकिन वो कर ही नहीं पाई क्योंकि इसमें अपग्रेड करना पड़ेगा उसे। दैट्स द पॉइंट। सो मैंने सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ पे और प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की। फर्दर जो मेरे पास यहाँ सॉफ्टवेयर में अभी एक और इंस्टॉल है वो ये है कि अटेंडेंस मॉड्यूल यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉल है। अटेंडेंसेस पे मैंने पहले भी एक बार वर्किंग की थी, इसके बारे में एक छोटा सा जो है वो ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि मैं इससे वर्किंग कर चुकी हूँ। तो इसमें सिंपली चेक इन चेकआउट का मेथड है, मैनेज अटेंडेंसेस, रिपोर्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन। चेक इन चेकआउट का जो सिंपली मेथड है वो ये है कि हम इसमें ये हमने कर लिया चेक इन, गुड बाय, ओके। अब हम यहाँ पर अगर जाते हैं एम्प्लॉयज़ को देखते हैं, जब हम एम्प्लॉयज़ एडमिनिस्ट्रेटर ग्रीन लाइट का मतलब ये होता है कि ये एम्प्लॉय जो है वो अवेलेबल है, चेक इन कर चुका है। अब अगर हम इसके ना सेटिंग्स पे जाते हैं इसकी, कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, पिन कोड हम ओपन कर देते हैं। पिन कोड लगाने से ये होगा कि अब जो है वो एम्प्लॉयज़ है अटेंडेंस भी दे सकते हैं। चेंज डिस्कार्डेड, यहाँ पर पिन कोड अप्लाई हो नहीं रहा, या मैं क्लिक करती हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। कियास्क मोड आ गया, सही। तो यहाँ पर स्कैन योर बैज आ जाएगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय कर लेते हैं इस तरीके से पिन कोड। अब पिन कोड मेथड था वो अलग था, ये कियास्क मोड है, इसमें यह है कि इसमें स्कैन योर बैज है, इसको ओके करेंगे, सिंपली ये बैज स्कैन हो जाएगा। अब ये क्या है, कौन सा एम्प्लॉय इंटर हुआ था, ये हुए थे इंटर, क्लिक करते हैं, देखते हैं ग्रीन होता है नहीं होता, ग्रीन हो, इसका मतलब ये एम्प्लॉय हमारे पास अब अवेलेबल है। इस तरीके से अब ये चेकआउट करना चाहेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय, इनको सेलेक्ट किया, चेकआउट, गुड बाय, एम्प्लॉयज पे जाते हैं, राइट this sign show that this person is not now is not available within company simply। तो ये हमें ये शो करता है, ये हमें सही। तो अब अगर हम इसके बाद इसको बैक करते हैं, मैनेज अटेंडेंस एम्प्लॉयज ऑफ समवन ओवर, ये हमारे पास HR सेटिंग, स्कैन बैज आईडी, ये बैज आईडी है हमारे पास। अगर हम लोग इसके अलावा बैच के थ्रू भी अगर हम करना चाहते हैं, अगर सिंपली हम लोग को ये इसमें ये
एम्प्लॉय पिन ये है, इसलिए मेरे पास यहाँ पर हट रहा है क्योंकि अगर मैं इसमें क्लिक करूँगी, टिक करूँगी तो हर एम्प्लॉय जो है वो अपना पिन कोड इंटर करेगा सिंपली अपने सॉफ्टवेयर से और वो उसमें इंटर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इसमें एम्प्लॉयज़ के थ्रू खुद इंटर नहीं हो सकती, वो सिर्फ मैं कियास्क मोड में इंटर हो सकती हूँ, जो कि मैंने अभी इंटर होकर दिखाया है। इसके अलावा इसमें कियास्क मोड में एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है हमारे पास ये स्कैन योर बैच। स्कैन योर बैच का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्प्लॉय है मिस्टर इफ्तिखार समी, ये हमारे पास एम्प्लॉय हैं, ये कौन है, यहाँ पर सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर है। हम इनका बैच प्रिंट करते हैं, प्रिंटर ऑन करते हैं हम। इनका बैच करते हैं प्रिंट। सही, ठीक है। अब हम इनका बैच करते हैं प्रिंट। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को प्रिंट बैच का ऑप्शन देते हैं तो वो क्या करेगा, उसको हम बैच की सेव देंगे। हम सिंपली ये ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट बैच पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, लोड होगा। ओपन करते हैं, ओके, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये आ गया इनका बैच। इफ्तिखार समीर, चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर इनका बैच आ गया। अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, सिंपली हम क्या करेंगे, प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, प्रिंट, एक कॉपी निकालनी है, प्रिंट करने से। इसकी पिक्चर्स मैं आपको सेंड करूँगी। इस तरीके से ये मेरे सामने बैच आ गया प्रिंट होकर। तो इस तरीके से ये होगा कि हम इसके हर एम्प्लॉयज़ को जो है वो एक बैच जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं प्रिंट करके। तो ये एक ईजी सा मेथड है। अब वो इस बैच के थ्रू अपने बैच को वो जब क्या करेगा, वो एम्प्लॉय इधर स्कैन करेगा इस बैच को तो वो सिंपली इंटर हो सकता है और एग्जिट कर सकता है। तो ये एक सिंपलेस्ट मेथड है अटेंडेंसेस का। रिपोर्टिंग पे जाते हैं हम, तो ये हमारे पास रिपोर्टिंग शो होगी कौन सा एम्प्लॉय कितनी देर तक और किस दिन जो है वो किस दिन अवेलेबल था इस कंपनी में, डेट और टाइमिंग्स के हिसाब से। टाइमिंग्स अरेंज नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि इसमें टाइम शीट का मेरे पास वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है इसमें मेरे पास, इसलिए मैं टाइम्स वगैरह अरेंज नहीं कर सकती, ये वजह है। इसके अलावा इसमें रिपोर्टिंग है, कॉन्फ़िगरेशन में सिंपली वही पिन मेथड है, एम्प्लॉय को पिन हमें क्लिक करोगे तो मतलब एम्प्लॉयज़ जो हैं वो पिन के थ्रू ऐड हो सकते हैं सिंपली। अब हम यहाँ पर सिंपली चेकआउट पे चले जाते हैं दोबारा से। तो ये एक सिंपल सा छोटा सा मेथड है इसका अटेंडेंसेस का, और जो है वो रिपोर्ट इस मॉड्यूल का, और प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, और सिंपली ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। ओके, सो ये हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट था। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, you can ask me, and thank you so much for listening and for joining. And if there is any other question related to this project or employees or attendance, you can ask me, and you can give me time for show you the whole project again through online session. So it's totally depend on you, sir. अगर ये आपके लिए आपको इसमें क्लियर है, then no problem, हम ऑनलाइन सेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं है, कोई भी पॉइंट कंफ्यूजन है, देन नो इश्यूज, हम
कोई ऑनलाइन सेक्शन आप मुझे टाइमिंग्स वगैरह दे दें, हम ऑनलाइन सेक्शन भी अरेंज कर लेंगे। फर्दर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप यू लाइक माई प्रोजेक्ट एंड माई वर्किंग। इसमें ओवरऑल मैंने तकरीबन कोई 2 to 3 वीक्स जो है उसमें वर्किंग की है, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट को पिक किया and still working here. And thank you so much. I want to thank my instructor, Mr. Iftikhar Sami, who helped me and guided me. And the most important thing, give us an opportunity to work on ERP for the first time. And it was such a great journey and such a great experience for me to working on ERP, on especially on project module on which I'm doing MBA project management, and it's such a part of my experience. Whenever I do a job, whenever I go somewhere, I memorize it that I work on ERP projects, and Sir Tikhar assigned me and give me a task to work on. So thank you so much, and thank you so much.